Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you about Ohm's law. This topic is from chapter 13 of class 2nd year. This law was given by Sir George Simon Ohm in 1827. He was a German physicist. According to him, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends, provided the physical state of the conductor does not change. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर या कोई वायर है, उसको आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें. बैटरी के साथ कनेक्ट करने से उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा. ठीक है. और यहाँ पर ओहम्स लॉ की कंडीशन ये आती है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड the physical state of the conductor does not change. The physical state such as temperature of the conductor does not change. Means कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो उसके लिए कंडीशन ये है कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट है, जैसे कि उसका टेम्परेचर है, उसको चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं. मैथमेटिकली इस मैथमेटिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग आई इज़ प्रोपोर्शनल विद वी एंड आई इज़ इक्वल टू 1/r इंटू वी. व्हेन यू रिप्लेस प्रोपोर्शनैलिटी विद इक्वालिटी यू पुट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. r इज़ द कांस्टेंट ऑफ proportionality. Final expression is V is equal to IR. You can say that V is equal to IR. ये तीनों क्वांटिटीज़ जिसमें V एक पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट और R इज़ फॉर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. इन तीनों क्वांटिटीज़ में से अगर आप के पास कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ हैं, यू हैव टू क्वांटिटीज़ एंड यू हैव टू डिटरमिन द अननोन वन. यू कैन ईजीली फाइंड आउट बाय arranging formulas, arranging this formula. You can find V, you can find I and R by arranging them as shown on the screen. Okay. Now resistance that we talk about, the constant of proportionality, that is the resistance of the conductor. Okay. The opposition to the flow of charge through a conductor. Basically negative charges or electron are the charge carriers in case of conductors. ठीक है. जब चार्ज कैरियर्स के लिए अपोजिशन कंडक्टर में क्या है, वो पॉजिटिव आयनिक कोर्स दैट आर लोकल पॉजिटिव आयनिक कोर्स आर लोकलाइज इन केस ऑफ कंडक्टर, दे डोंट लीव देयर पोजीशन, बट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दे स्टार्ट टू oscillate, they start to vibrate at their position with larger amplitude, and they oppose the motion of free electron as a result of collision between these ionic cores and free electrons. ठीक है. तो basically this the cause of the resistance. ठीक है. The opposition to the flow of charge through a conductor. रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से. ठीक है. इसका SI सिस्टम में इसका यूनिट ओहम है, और ओहम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा से. ठीक है. हम रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है R इज़ इक्वल टू V/I. ठीक है. हम इसको लिख सकते हैं 1 ओहम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर. यहाँ से हम 1 ओहम को भी डिफाइन कर सकते हैं. द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन 1 एम्पियर करंट passes through the conductor due to potential difference of 1 volt across its ends. ठीक है. The resistance of the conductor depends on certain factors, like first one is the dimension of the conductor. So dimension include length and area of the conductor. ठीक है. Secondly, it depends on the physical state, that's the temperature of the conductor. Next is the nature of the conductors. The resistance of the conductor depends on the dimensions of the conductor, it depends on the physical state of the conductor, it depends on the nature of the conductor. Okay.
On the basis of Ohm's law, conductors are classified into two categories: the ohmic and non-ohmic conductors. Okay, first one is the ohmic conductors, a conductor which obey Ohm's law strictly. That includes metallic conductors, copper, silver, gold. These are all ohmic conductors. अगर अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो V वर्सेस I जो ग्राफ होगा that will be a straight line that as you can see on the screen. Non-ohmic conductors, a conductor which does not obey Ohm's law. That includes semiconductor diode, tungsten filament. Semiconductor diode are basically PN junction diode that include P-type and type मटेरियल दैट आर कम्बाइंड टुगेदर, जिसमें एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं, जिसमें पी टाइप मटेरियल्स में होल्स होते हैं डैट्स कैरीज पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एन टाइप की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है. अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव और एन टाइप को जिसकी पोलैरिटी नेगेटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं. दैट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग. और फॉरवर्ड बाइसिंग का जो ग्राफ है वो आपको नज़र आ रहा होगा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है. इसका ग्राफ असेंडिंग है बट इट डज़ नॉट लुक लाइक ओहमिक डिवाइसेस. ठीक है. और अगर हम उसी सेमीकंडक्टर डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करें यानी कि पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो तब भी उसमें से करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो करंट लीकेज करंट होगा और डैट विल बी उसका ग्राफ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है. इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 18 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में. ठीक है. लेकिन ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस के सेक्शन में था, इस वजह से आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ द बल्ब. ठीक है. फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट. ठीक है. और उसका ग्राफ अगर आप देखें तो स्टार्ट में वो बिल्कुल ओहमिक डिवाइसेस की तरह है जिसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक लीनियर रिलेशन है, लेकिन आफ्टर सर्टन लिमिट वो जो कंडीशन है ओहमिक डिवाइसेस की वो फुलफ़िल नहीं रहती, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज़ नॉट चेंज. ठीक है. लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं रहती, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रहता, वो बेंड हो जाता है. और इसको अगर ओहमिक डिवाइसेस की तरह होना चाहिए था तो इस ग्राफ को डॉटेड लाइन की तरह होना चाहिए था फॉर ओहमिक डिवाइसेस, लेकिन इट इज़ लाइक जिसमें ये सॉलिड लाइन में की तरह टंगस्टन फिलामेंट का ग्राफ होता है. ये बेंड हुआ हुआ. ठीक है. दिस फ्रॉम टुडेज लेक्चर. थैंक यू.